Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers and listeners, as in our previous lecture, we were discussing about the human learning theories. Okay, in our previous lecture, we have discussed about the behaviorism or the behaviorist school of thought. So, in this lecture, we will discuss the next human learning theory, that is the meaningful learning theory, which is presented by Ausubel. We also call it the David Ausubels. Okay, first of all, we will see what is meaningful learning theory. It is based on attitude and capacity to learn, learning styles, and it is also the basis of constructivism. To learn meaningfully, individuals must relate new knowledge to relevant concepts they already know. Meaning, in this theory, the skills, the knowledge which we are getting in the first hand or the first time, that knowledge is related or its relevancy is made with the knowledge which we have learned previously. New knowledge must interact with the learner's knowledge structure, meaning the information, the knowledge which we are delivering to the students, that knowledge must have harmony or interaction with the knowledge structure of the learners. Understanding concepts, principles, and ideas are achieved through deductive reasoning. Emphasizing on meaningful learning than rote learning, mean that we should focus upon the meaningful learning, we should focus upon the active learning instead of the rote memory, mean के रट्टा लगाना या जो रट्टाबाजी है उससे हट के इसका जो स्ट्रेस होता है या फोकस होता है, that is upon the active learning. Okay, meaningful learning theory are concerned with how students learn large amount of meaningful material from verbal, textual presentations and learning activities. Meaningful learning results when new information is acquired by linking the new information in the learned on cognitive structure. A primary process in learning is subsumption, in which new material is related to relevant ideas in the existing cognitive structure या previous knowledge. So basically that theory जो हम इसमें जो हम देख रहे हैं, जो इसमें हम इस स्लाइड के अंदर, तो मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी जो है ये फोकस कर रही होती है उस लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज के जो हमें वर्बली, टेक्सचुअली या प्रेजेंटेशन से या जो लर्निंग एक्टिविटीज़ से हम लोग उसको एक्वायर कर रहे होते हैं या हासिल कर रहे होते हैं, और वो तमाम नॉलेज जो है वो हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, तो उसके साथ हम उसको लिंक कर रहे होते हैं, यानी उस नॉलेज स्ट्रक्चर के साथ उसकी जो लिंकेज है उसको डेवलप कर रहे होते हैं, और वो नॉलेज जो है जो रेलिवेंट आइडियाज़ हैं, जो प्रीवियस नॉलेज है, तो उसके साथ वो आपका जो न्यू नॉलेज है दैट इज़ बेसिंग अपॉन द योर प्रीवियस नॉलेज. सो डिडक्टिव टीचिंग मॉडल, वी विल सी कि व्हाट इज़ डिडक्टिव टीचिंग मॉडल. In this model, the pupil study specific examples, the teacher presents examples, the teacher explains important terms, the teacher presents general statement or abstraction of the lessons. Means that the things are started with the examples and then they are moved towards the lesson या towards the abstraction. Mean कि हम चीज़ों को example से start करते हुए और उसको उसकी जो concrete evidence है या जो उसका abstract है या जो general statement है उसकी तरफ हम इसको move करते हैं. Okay, root versus meaningful learning, as we discussed in our previous lecture, root learning is the characteristic of behaviorist school of thought. So we will here see the difference between the root versus meaningful learning. Root learning mean little or no relevant knowledge. Root learning basing upon no emotional commitment to relate new with the existing या relevant knowledge and poorly organized subject matter. In root learning जो होता है, जो subject matter होता है, जो content होता है, वो poorly organized होता है और आपको ideas के बारे में, चीज़ों के बारे में एक little या less जो knowledge है वो दे रहा होता है. While the meaningful learning relevant knowledge structure
emotional commitment to integrate new with existing knowledge and conceptual clear subject matter. While जो ये स्कूल ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग स्कूल ऑफ थाट है, ये आपको चीज़ों के हवाले से एक रेलिवेंट नॉलेज जो होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। जो मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं उनको इंटीग्रेट करने में आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज को और आपके न्यू नॉलेज के साथ इसकी इमोशनल कमिटमेंट होती है, और कंसेप्ट्स की जो क्लैरिटी जो होती है वो इस पे इस मीनिंगफुल लर्निंग का जो फोकस होता है वो कंसेप्ट क्लैरिटी या कंसेप्ट क्लियरेंस के ऊपर होता है। Okay, cognitivism in the classroom mean planning curriculum based on what students have already known and what they should learn. मीन के मीनिंगफुल लर्निंग थियरी के अंदर या कॉग्निटिविज्म के अंदर जो करिकुलम की जो प्लानिंग होती है वो बेस कर रही होती है इस चीज़ के ऊपर कि स्टूडेंट्स पहले क्या जानते हैं और अब उन्होंने क्या लर्न करना है। गिविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज एंड रियल लाइफ कंटेक्स्ट फॉर लर्निंग, कि स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो होती है या जो रियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स या सिनेरियोज होते हैं तो उनके हवाले से प्रिपेयर किया जाता है निसाब के अंदर। Creating interesting and motivating lesson that engage students means कि the content which is selected for the learning या for teaching the student that must be interesting and it should arouse motivation among the students so that their engagement or their participation can be enhanced. And the last one, integrating visual, audio and giving examples in lessons. Examples PowerPoint, songs, videos, reloys, websites. मीन्स कि जो आपका कंटेंट होता है उसको इंटीग्रेट किया जाता है, उसके अंदर विजुअल्स शामिल होते हैं, उसके अंदर ऑडियोज़ शामिल होते हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल्स के साथ जो चीज़ों को पढ़ाया जा रहा होता है या चीज़ों को उसको अंडरस्टैंड करवाया जा रहा होता है। ओके, now we will come upon the next school of thought, that is the humanistic psychology. We also call it the constructivist. ठीक है, फर्स्ट स्कूल ऑफ थाट वाज बिहेवियरिस्ट, सेकंड स्कूल ऑफ थाट वाज द कॉग्निटिविस्ट एंड द थर्ड स्कूल ऑफ थाट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वी आल्सो कॉल इट द कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके, कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन एज द वर्ड कंस्ट्रक्शन, यानी किसी भी चीज़ की तामीर करना, किसी भी चीज़ को रीबिल्ड करना। ठीक है, मतलब ये कि जो इन्फॉर्मेशन जो हम लर्न कर रहे होते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट हो रही होती है हमारे ब्रेन्स के अंदर, और हमारी जो लर्निंग जो होती है उसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है थ्रू आउट द लाइफ जो है वो चलती रहती है। Okay, Rogers' humanistic psychology has effective focus more than cognitive one, thus it is a perspective of a constructivist learning. Means कि जो ये school of thought है ये सिर्फ जो individuals की जो cognitive skills हैं उस पे बेस करने की बजाय उसकी तमाम skills के ऊपर focus कर रही होती है। Means social and interactive nature of learning, mean कि socially जो हमें social aspects हैं हमारे उसके बारे में भी learning जो होती है आपको दी जा रही होती है। आपकी इंट्रैक्शन जो होती है सोशली जो कैसे डेवलप की जाती है उस पर भी ये फोकस कर रही होती है। The focus of constructivism is away from teaching and toward learning. The goal of education is the facilitation of change and learning. Means कि जो constructivism है या constructivist school of thought है तो उसका पर्पस सिर्फ टीचिंग और लर्निंग से हट के जो इंडिविजुअल्स को जो है जो ह्यूमन बींग्स को है वो ट्रेन करना है, उनको फैसिलिटेट करना है चेंज के लिए कि वो अपनी लाइफ के अंदर जो अपने बिहेवियर्स को चेंज कर सकें और जो उनकी लर्निंग जो है वो जहाँ ज़रूरत पड़े, मीन के रिजिड सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर कि जहाँ वक्त के लिहाज से या टाइम के लिहाज से या स्कोप के लिहाज से चीज़ों को चेंज किया जा सके। Roger is not as concerned about the actual cognitive process of learning because for him if the context for learning is properly created then human beings will learn everything they need to. According to this school of thought वो कहते हैं कि अगर आपका context of learning जो है, आपका जो structure of learning है वो properly created है तो फिर individuals जो हैं वो चीज़ों को automatically जिनकी उनको ज़रूरत होती है वो उसको understand कर लेते हैं। Okay, here are the some things which should focus the teachers according to this school of thought. Mean be real and genuine. कि टीचर्स शुड बी रियल एंड जेन्युइन, डिस्कॉर्डिंग मास्क ऑफ स्प्योरिटी एंड ओमनिसेंस, मीन्स के दिखावा या स्प्योरिटी जो बढ़तरी है इन चीज़ों से हट के जो है जैसे है की बुनियाद पे बच्चों को लाइफ के लिए तैयार करना चाहिए। हैव अ जेन्युइन ट्रस्ट एक्सेप्टेंस एंड प्राइजिंग ऑफ स्टूडेंट एज अ वैल्यूएबल इंडिविजुअल्स, कि आप लोगों के अंदर जो है इंडिविजुअल्स के अंदर एतमाद जो है उसको डेवलप कर सकें, चीज़ों को एक्सेप्टेंस जो है या एक्सेप्टेंस की जो फ़िज़ा है उसको डेवलप कर सकें।
कम्युनिकेट ओपनली एंड एम्पैथिकली, मीन कि आप जो स्टूडेंट्स के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ओपनली एंड एम्पैथिकली होनी चाहिए, उसके अंदर कोई रख रखाव या लग लगाव जो है वो नहीं होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंस क्लूज टू कंस्ट्रक्टिविस्ट। इनके अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट, फॉलोइंग आर द क्लूज और फॉलोइंग आर द थिंग्स विच द टीचर्स शुड फॉलो फॉर द लर्निंग ऑफ द इंडिविजुअल्स। फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन मीन लाइव at peace with all of their feelings and reactions, they are able to reach their full potential. Learning how to learn is more important than being taught something from the superior vantage point of a teacher who unilaterally decides what shall be taught. Community of learners, if the context for learning is properly created, then human beings will learn everything they need to. And the empowerment of students mean in the classrooms, students should be allowed to negotiate learning outcomes, to cooperate with teachers and other learners in a process of discovery, to engage critical thinking and to relate everything they do in school टू देयर रियलिटी आउटसाइड द क्लासरूम। मीन्स के इंडिविजुअल्स को फुल्ली फंक्शनिंग के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है, अपनी रिएक्शंस और फीलिंग्स, उनका जो पोटेंशियल है उसको फुल्ली डेवलप किया जाए। लर्निंग हाउ टू लर्न मीन्स कि उनको सिर्फ जो रूट में लर्निंग है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि इंडिविजुअल को बताया जाए कि चीज़ों को किस तरह लर्न करना है, उनको एक फ्रीडम जो है, एक आज़ादी जो है वो दी जाए कि वो चीज़ों को लर्न कर सकें। कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स मीन्स कि आप इस लर्नर्स के लिए वो कम्युनिटी जो है या वो जो इन्वायरमेंट जो है वो प्रॉपरली क्रिएट कर दें कि ताकि जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, जिसको वो लर्न करना चाहते हैं, उसको लर्न कर सकें। एम्पावरमेंट है मीन्स कि आप स्टूडेंट्स को एम्पावर करें, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है, उनकी जो कोऑपरेशन है, इन सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप किया जा सके। Okay, so that were the constructivist school of thought they were thinking what the students should do, and here are the weaknesses or the क्रिटिसिज्म ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट। इस स्कूल ऑफ थाट के ऊपर जो तनकीद होती है कि जो इसके अंदर डेफिशिएंसीज हैं, जो फ्लॉज हैं वो क्या है। मीन लूजिंग टू मच टाइम इन द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग स्टूडेंट टू डिस्कवर फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर देमसेल्व्स। मीन के टाइम कंज्यूमिंग है, जब आप स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि चीज़ों को डिस्कवर करने में, फैक्ट्स को डिस्कवर करने में, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और इस प्रोसेस के अंदर समटाइम डिसिप्लिन इशूज़ भी क्रिएट होते हैं। अ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट माइट बिकम सो नॉन थ्रेटनिंग दैट द फैसिलिटेटिव टेंशन नीडेड फॉर लर्निंग इज एब्सेंट। मीन्स के जो नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट जो आप उनको देना चाहते हैं, समटाइम उसके अंदर जो फैसिलिटेटिव टेंशन है वो क्रिएट हो जाती है, उसकी एब्सेंस जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। ओके, सो दीज वर द मेजर थ्री स्कूल ऑफ थाट्स बच्चे जो हमने इनको डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि इन थ्री स्कूल ऑफ जो थाट्स हैं इनमें बेसिक जो है वो डिफरेंस क्या है। ठीक है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ थाट वाज द बिहेवियरिज्म। So according to the behaviorism, new behaviors are changes in behaviors are acquired through association between stimuli and response. Means कि जो individuals के behaviors के अंदर जो change आ रही होती है वो associated होती है स्टिमुली और रिस्पांस के अंदर। मीन कि जो मुहर्रक है, जो स्टिमुलस जो होता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इंडिविजुअल के रिस्पांस में या उसकी लर्निंग के ऊपर। वाइल द कॉग्निटिविज्म स्कूल ऑफ थॉट सेज के लर्निंग ऑकर्स व्हेन थ्रू इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स कि जो इंडिविजुअल्स की जो लर्निंग होती है वो कॉग्निशन से होती है, उनका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उससे होती है। ये एक इंटरनल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स जो है वो उसको लर्न कर रहे होते हैं। मीन्स कि जो उनको IQ लेवल जो होता है या बच्चों की जो ज़हनी सलाहियत होती है वो अपनी उसी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक इंटरनल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन से जो उनकी लर्निंग जो है वो कंडक्ट हो रही होती है। द थर्ड वाज कंस्ट्रक्टिविज्म। So constructivism school of thought says कि we construct our own knowledge of the world based on individual experiences। मीन कि जो इंडिविजुअल्स के जो कंस्ट्रक्शन होती है नॉलेज की वो जो है बेसिकली बेस कर रही होती है उनके ज़ाती तजर्बात के ऊपर। जो इंडिविजुअल ज़ाती तौर पे जो एक्सपीरियंसेस या जिन सिचुएशन से इंडिविजुअल्स जो है वो गुजर रहा होता है तो वो सिचुएशन जो होती है उससे वो लर्न कर रहा होता है। तो बेसिकली दीज आर द मेजर थ्री स्कूल ऑफ थाट्स, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, एंड दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन these major three school of thoughts. Hope you have understood. If you feel any issue in understanding any aspect, so you may ask in the comment section. Thank you very much.